Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Dear students, today we are going to start the chapter Interview, and it is composed by Christopher Sylvester. It's very interesting chapter, and we are taking the first part of this chapter today, whereupon we came to know all about the term interview, positive and negative aspect of interview, and what is being said by the different celebrities about interview. But before going ahead, let me provide you the introduction to the chapter. See, nothing is going to remain untouched in this chapter. Let's see, right from the beginning, it is suggested to you that you have to watch this video right from the beginning till the end, and you feel in a very comfortable situation after that. See, the interview by Christopher Sylvester is an excerpt taken from his Penguin book of interviews. In this, he talks about various opinions, of the celebrities regarding an interview. Okay, its functions. Okay, methods and merits. And in the next part, all these things you would probably find in the first part of the chapter, but in the later part, in the second part, we interact with the I would like to say it also consists of an excerpt from an interview with the famous writer Alberto Eco. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, वर्ड बाय वर्ड जाने से पहले, let me tell you that what the chapter is all about. You see here on that the interview by Christopher Sylvester is an excerpt taken from the Penguin book of interviews. In this, इसमें he talks about various opinions of the celebrities. ये फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है. फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यू का जो फर्स्ट पार्ट है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसमें talks about various opinions of the celebrities regarding interview, its function, methods and merits or demerits. It also consists of an excerpt from an interview
with the famous writer Umberto Eco. Umberto Eco का इंटरव्यू हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कंसिस्ट करता है? फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया कि एक्चुअल इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू का फंक्शन क्या है, मेथड क्या है और इसकी मेरिट्स क्या है, इसकी डिमेरिट्स क्या है, और जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं, सेलिब्रिटीज इसके बारे में उनकी ओपिनियन क्या है, हम फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ेंगे। एंड टुडे इट मे बी अ लेंथी पीरियड फॉर यू, बट आई हैव टू कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Okay, so I hope you write down that interview by Christopher Sylvester is an excerpt taken from the Penguin book of interviews. Okay, in this he talks about various opinions of the celebrities, and I would like to write down all those celebrities and their comment on interview. इंटरव्यू के बारे में उनके विचार क्या हैं और कौन कौन सी सेलिब्रिटीज हैं जिनका डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में आया है, मैं वो आपको लिखवाऊंगा अलग से, आप उसको नोट करोगे। इंटरव्यू, इट्स फंक्शन, मेथड और मेरिट। और जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या है, एक इंटरव्यू है एक फेमस राइटर का जिसने द नेम ऑफ रोज बुक लिखी, जिसने जो बहुत ज्यादा जो फेमस हुआ उस समय कॉन्टेम्परेरी एज में, अल्बर्टो इको का इंटरव्यू हम पढ़ेंगे। लेकिन अल्बर्टो इको का इंटरव्यू पढ़ने से पहले फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। देखिए, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। सी, देखिए, फर्स्ट टर्म इंटरव्यू invented 130 ईयर एगो। जब इस टर्म की शुरुआत हुई इंटरव्यू शब्द की, तो वो बात कब से आती है, 130 साल पहले से इंटरव्यू टर्म इन्वेंट हुआ, इजाद हुई ये बात एक तरीके से। उसके पश्चात एक बात इसमें आई, आप ध्यान रखिए, क्या है ये, कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। क्या है, कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म किसको कहा गया है, इंटरव्यू के बारे में कहा गया है। एक सामान्य स्थान रखा है जर्नलिज्म में। पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरव्यू एक तरीके से जुड़ा हुआ है, पत्रकारिता से ही जुड़ा हुआ, जर्नलिज्म से ही जुड़ा हुआ है। अगला इसमें आप क्या लिखोगे, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज इंटरव्यूड ओवर द इयर्स। बहुत से सेलिब्रिटीज हुए सालों से, उन्होंने 1000 के आसपास, हजारों की संख्या में इंटरव्यू दिए हैं। और ये बेस्ट मीन्स और मीडियम है अपने कंटेम्परेरी के बारे में। यदि किसी को कोई जानकारी हासिल होती है तो वो किसके थ्रू होती है, इंटरव्यू के थ्रू होती है। इसको अनवांटेड इंट्रूजन इन प्राइवेट लाइफ भी कहा गया है, कि ये बिना अनुमति के निजी जीवन में एक दखलंदाजी देता है, ऐसा इसके बारे में बोला गया है। ओके, ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव में ए सोर्स ऑफ ट्रूथ इसको कहा गया है। क्या कहा गया है, ए सोर्स ऑफ ट्रूथ कहा गया है। इन प्रैक्टिस एंड आर्ट, व्यवहारिक तौर पर इसको एक कला भी कहा गया है और निश्चित तौर पर है भी। ओके, लेकिन जहां तक इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की बात आती है, इसके जो विक्टिम रहे हैं वो सेलिब्रिटीज रहे, इसलिए वो इसको अनवांटेड इंट्रूजन इनटू देयर प्राइवेट लाइव्स बोलते हैं। दखलंदाजी देता है इंटरव्यू उनके निजी जिंदगी के अंदर, उनका ऐसा मानना है। लेकिन यदि पॉजिटिव की बात करें तो ये इट्स हाईएस्ट फॉर्म सोर्स ऑफ ट्रूथ है। एंड वी कैम टू नो,
द फेमस पर्सनालिटी ऑफ आवर टाइम, कंटेम्पररी टाइम, ओनली बाय इंटरव्यू। यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में हमें कोई जानकारी मिलती है, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में, तो उसका सीधा सा माध्यम कौन बनता है? इंटरव्यू बनता है। और इसको क्या कहा गया है? सोर्स ऑफ ट्रूथ कहा गया है, व्यवहारिक कहा गया है, एक कला की संज्ञा दी गई है। लेकिन यदि हम यहाँ पर बात करें तो बहुत से सेलिब्रिटीज ने सालों से इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन वो इसको एक अनवांटेड इंट्रूजन मानते हैं। उनका मानना क्या है कि ये विक्टिम्स रहे हैं उसके, ये डिस्पाइज करते हैं। एक बात मैं भूल गया, यहां बताता हूं आपको। डिस्पाइज ऑफ बीइंग इंट्रोड्यूस, ये घृणा करते हैं। किसके बारे में कहा गया है? सेलिब्रिटीज के बारे में इसमें कहा गया है। और इन प्रिमिटिव कल्चर, यू नो, देयर वाज ए थिंकिंग ऑफ पीपल एट दैट टाइम। और जब कोई भी किसी कैमरे से फोटोग्राफ स्नैप करता था तो इट वाज बीइंग थॉट दैट ही वाज स्टीलिंग दैट पर्सनस योर। ऐसा माना जाता था कि जब भी कोई किसी कैमरे से किसी की फोटो को कैप्चर करने का प्रयास करता प्रिमिटिव टाइम में, प्राचीन समय में, तो इट इज बीइंग सेड दैट ही वाज स्टीलिंग दैट पर्सनस योर। ये नोशन था, अवधारणा थी इसके बाद। अब आप क्या देखोगे कि ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट आए, इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन आया। अब कौन कौन से जो सेलिब्रिटी हैं उनकी ओपिनियन क्या है, जो हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, वो आप देखिए एक बार। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा काफी हद तक कि क्वेश्चन आएंगे तो किस प्रकार से आपको उसके आंसर देने हैं। देखो, यदि मैं शुरुआत में इस चैप्टर की बात करता हूं तो सबसे पहले आता है वीएस नेपॉल। वीएस नेपॉल शॉर्ट टर्म में मैं लिख रहा हूं, आप समझना इसको। wounded by interviewer, it is considered just like an assault. Second आपका आप ये नोट कर लें सभी, had a horror of the interviewer, lavish terror. Third, show below. Thumbprints on windpipe. 4, Rudyard Kipling. रुडयार्ड किपलिंग कहता है इमोरल, crime and assault. नोट रखिए इसको भी। फोर्थ रुडयार्ड किपलिंग एंड द फिफ्थ H.G. Wells. इंटरव्यूइंग एज एन ऑर्डिनरी। देखिए वीएस नेपॉल को क्या कहना है इसमें, कहना कि ये आहत करता है, चोट पहुंचाता है, और एक तरीके से एक अच्छा व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति हमेशा क्या करता है, इग्नोर करता है इंटरव्यू को। वीएस नेपॉल का मानना यह है, अकॉर्डिंग टू हिम, क्या कहता है वो, बॉन्डेड बाय इंटरव्यू। लेविस के रूल की बात आती है तो वो क्या कहता है कि ही हैड ऑलवेज ए हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, हमेशा उसके मन में हॉरर रहता था इंटरव्यूअर के प्रति, और वो उससे एक तरीके से भय मानता है। हैड ए हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर, इट इज बीइंग सेड बाय लेविस कैरोल इन दिस चैप्टर। सो below, thumbprints on windpipe. You know very well about windpipe. गले की जो ये आपकी नली है सांस लेने की, थंबप्रिंट्स पड़ जाना, निशान पड़ जाना उसके, इस समान से है इंटरव्यू को। बहुत ही तीखी टिप्पणी है, थंबप्रिंट्स ऑन विंडपाइप बाय सो below। न निगलते बनता न गटकते बनते, एक तरीके से हम इस प्रकार से बोलते हैं। ये थंबप्रिंट्स ऑन विंडपाइप एक प्रकार से विंडपाइप के ऊपर थंबप्रिंट्स के निशान हो जाने जैसा है इंटरव्यू। बहुत ही टिपिकल टास्क इसको कहता है। रुडयार्ड किपलिंग तो और भी ज्यादा जो है
एक टिप्पणी करता है, वो इसको इमोरल क्राइम और एज एन असॉल्ट मानता है। ओके, और रुडयार्ड किपलिंग, जब दो पत्रकार वहां पहुंचते हैं तो रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ जो कमेंट करती है वो कहती है कि इट इज जस्ट लाइक एन असॉल्ट ऑन अ पर्सन्स लाइफ, और ये किसी भी तरीके से कोई भी एक सभ्य व्यक्ति न तो इंटरव्यू लेना और न इंटरव्यू देना पसंद करेगा, ये वो कहती है। H.G. वेल्स एक कंस्टेंट इंटरव्यूवी और इंटरव्यूअर रहा है, और वो इसको क्या कहता है, इंटरव्यूइंग एन ऑर्डिल, एक अग्नि परीक्षा की वो संज्ञा देता है। इसकी संज्ञा देता है अग्नि परीक्षा की संज्ञा। आप देख रहे हो इन 5 जो है फेमस जो सेलिब्रिटीज हैं, राइटर्स हैं, इनकी बात आई है यहाँ पर, जो इंटरव्यू के बारे में अपनी टिप्पणी करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात एट द वेरी बिगिनिंग इट इज बीइंग सेड was that in truth it is in a common way, I would like to say it is a source of a truth. As far as the term interview is invented, it was invented before 130 years ago, and it is a common place of journalism. Several thousand celebrities so far interviewed. Okay, Nepal wanted by interview. Lewis Carroll had a horror of the interviewer. Saul Bellow, just like a thumbprints on windpipe. And Rudyard Kipling, just consider it immoral crime and as an assault. Or H.G. Wells, according to H.G. Wells, it is interviewing ordeal. Interviewing an ordeal. Okay. Now let's see your first part of the chapter, the interview. हमने जो चीजें यहां पर पढ़ी हैं, लेट मी रिमाइंड यू, वी हैव टू कम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स हियर इन द फर्स्ट पार्ट। सो टेक इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, द इंटरव्यू, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर was student of history at Peterhouse, Cambridge. He was a reporter for a private eye. Okay. For 10 years, 10 साल तक वो रहा रिपोर्टर, एंड हिज रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर, और वैनिटी फेयर के लिए उसने लिखा। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। ये बातें मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पहले लिखवा दी हैं, आपने संभवतः उनको नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, देखिए, since its invention a little over 130 years ago, it means the term interview was invented just 130 years ago. The interview has became a common place of journalism. पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में it has become a common place. इसका एक common place है, एक तरीके से इसका स्थान है। Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. कहता है कि वर्तमान में जो भी लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, उसने अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी के इंटरव्यू को जरूर पढ़ा होगा। While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years. यदि हम दूसरी दृष्टि से देखें तो several thousand celebrities ने अभी तक इंटरव्यू दिया होगा। Some of them repeatedly, रिपीट किया होगा कईयों ने। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से सेलिब्रिटी ऐसे हों, उन्होंने बार बार इंटरव्यू दिए हों। So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its function, method and merits vary considerably. जाहिर सी बात है, हर एक व्यक्ति का नोशन, हर एक व्यक्ति की अवधारणा, हर एक व्यक्ति की प्रिंसिपल्स सेम नहीं हो सकती। कोई इसके बारे में अलग तर्क रखेगा तो कोई अलग रखेगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो कॉमन हो सकती हैं, लेकिन फिर भी थॉट्स जो है वो वेरी जरूर करेंगे। Some might make quite extravagant claim for it as being in its highest form. बहुत से लोग दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि ये अपनी हाईएस्ट फॉर्म में सोर्स ऑफ ट्रुथ है। मैंने अभी आपको बताया था इंटरव्यू के बारे में, यदि इसकी पॉजिटिव की बात करें तो ये क्या है, सोर्स ऑफ ट्रुथ है।
आप याद रखना इसको, क्या है ये? सोर्स ऑफ ट्रूथ है। ओके, एंड आर्ट, अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम सेलिब्रिटीज की बात करें, हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम, जो कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू से अपने आप को ये एक तरीके से इसके विक्टिम रहे हैं, माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू, वो डिस्पाइज करते हैं। व्हाट यू नो अबाउट डिस्पाइज? डिस्पाइज, हेटर्ड, नफरत करना, वो इससे क्या करते हैं? नफरत करते हैं। उसका रीजन क्या है? इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, ये एक तरीके से उनकी निजी जिंदगी के अंदर अकारण ही प्रवेश है, अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम। डिमिनिशेस करना, स्मॉल करना, कम करना, ये उनके व्यक्तित्व को क्या करता है? कम करता है। जस्ट एज इन प्रिमिटिव कल्चर इट इज बिलीव्ड दैट if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's show. It is being said, just I earlier mentioned here, that it is being said in primitive culture there was a belief that anyone taking the portrait, the photograph of a person, it was considered that he was stealing that person's soul. ऐसा माना जाता था कि वो उसकी कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को चुरा लेगा, ऐसा करके। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interview. मैंने आपको शुरुआत में यहीं पर लिखवा दिया है। V.S. Naipaul क्या कहता है कि wounded, some people are wounded by interview and lose a part of themselves. Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland जिसने लिखा, was said to have a just horror of the interviewer. Lewis Carroll क्या मानता है? Had a horror of the interviewer. And he never consented to be interviewed. उसने कभी स्वीकृति नहीं दी, कंसेंट नहीं किया इंटरव्यू के लिए। It was his horror of being lionized. Lionized का मतलब होता है treat as celebrity, प्रसिद्ध हो जाने का भय। Lionized का मतलब there was a fear of treating as a celebrity, एक सेलिब्रिटी के तौर पर प्रसिद्ध हो जाने का उसका भय था। Which made him thus repel होता है drive back, पीछे की तरफ ले जाना। Would be acquaintances, interviewers and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. उसको हमेशा ये भय बना रहता है कि ऐसा करने से वो लायनाइज्ड हो जाएगा और फिर उसके लोग जो है लगातार इंटरव्यू लेने वाले पहुंच जाएंगे और वो उसके ऑटोग्राफ चाहेंगे और फिर वो क्या करेगा? उन सब को चुप करने के लिए और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कहानियाँ सुनाएगा, अम्यूजमेंट और सेटिस्फेक्शन के साथ। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एज एन इवन मोर कंडेमेंट्री एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। रुडयार्ड किपलिंग तो कहता है कि इससे भी ज़्यादा आलोचनात्मक अभिव्यक्ति देता है इंटरव्यू के बारे में। वो तो इनसे भी ज्यादा क्या करता है? कंडेमेंट्री एटीट्यूड रखता है। His wife Caroline writes in a diary in 14th October 1892. उसकी पत्नी लिखती है अपनी डायरी में 14th October 1892 को that their day was wrecked by two reporters from Boston. बोस्टन शहर से आए हुए दो रिपोर्टर्स ने वो पूरा दिन ही उनका खराब कर दिया। She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed?" मैं इंटरव्यू के लिए रिफ्यूज क्यों करता हूँ? Because it is immoral, क्योंकि ये अनैतिक है। It is a crime, just as much of a crime as an offense against my person. जैसे किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के खिलाफ, इंडिविजुअल के खिलाफ कोई अपराध किया जाता है, कहता है कि ठीक उसी प्रकार का कि ये क्या है? इमोरल है, एक क्राइम है रुडयार्ड किपलिंग के वर्डिंग्स के अनुसार। असॉल्ट है एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, इट इज कावर्डली एंड वाइल। इट इज कावर्डली है और वाइल है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। वाइल को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी सम्मानित व्यक्ति इसके लिए नहीं कहेगा। मच लेस गिव इट, और इसको देना भी नहीं चाहेगा इंटरव्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति
न इंटरव्यू लेना पसंद करेगा और न इंटरव्यू को देना पसंद करेगा, अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन कंसीडर द रुडयार्ड किपलिंग वाज मोर कंडेमेंट्री देन दीज अदर पीपल। अकॉर्डिंग टू हिम, ही कंसीडर्स interview as a very immoral crime, as an assault, just like assault of individual, व्यक्तिगत तौर पर assault करने के जैसा ये इसको मानता है। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault, लेकिन फिर भी वो कई बार अपने आप को जो है इस assault से घिरा हुआ पाता है। और मार्क ट्विन only a few years before, और मार्क ट्विन का इंटरव्यू लेता है। H.G. Wells in an interview in 1894, a few years before, H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal. H.G. Wells की बात आ गई तो H.G. Wells मैंने यहाँ पर पहले लिखा हुआ है interviewing and ordeal, वो इसको एक अग्नि परीक्षा के समान मानता है। वो समझता है कि ये जो है प्रक्रिया ये एक ordeal है, but was a fairly frequent interviewee, और लेकिन फिर भी वो frequent interviewee बना रहा। इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी, इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यूवी इंटरव्यू देने वाला। And 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin, Saul below, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being and thumbprints on his windpipe। सॉल बिलो की बात आ गई तो कहता है कि कई बार उसने एक टिप्पणी की कि उसने कहा कि ये क्या है, एक थंबप्रिंट्स ऑन विंडपाइप है, श्वास नली के ऊपर थंबप्रिंट होना उसके समान है। Yet despite the drawbacks of the interview, it is supremely serviceable medium of communication। कहता है लेखक इन सब बातों के बावजूद, ये सब चीजें होने के बावजूद क्या है, इट इज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, माध्यम है। These days more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews। हमारे समकालीनों में कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति है, we can take the example of Prime Minister, we can take the example of any other celebrity। If you wanted to know about his private life or anything, what is going to happen with him, we came to know by either by his statement or by an interview। We have only two sources, that's why it is being said interview is the perfect source of find out the various aspect of a पर्सनालिटी। किसी भी व्यक्तित्व के बारे में यदि हमें जानना है तो उस व्यक्तित्व को जानने के लिए हमें निश्चित तौर पर इंटरव्यू के द्वारा ही हमें उसका पता लगता है। कहता है कि डेनिस ब्रायन हैज रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर। हमारे पास जो चीजें पहुंचती हैं किसी भी फॉर्म में, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन पूछता है, देन वी कैन टू नो अबाउट दैट पर्सन। हम उस व्यक्ति के बारे में तभी पता कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। अनप्रेसिडेंटेड को कहेंगे नेवर डन और नॉन बिफोर, जिसको पहले से भी न जाना गया हो और पहचाना गया हो या ऐसा काम नहीं किया गया हो, इस प्रकार की पावर और इन्फ्लुएंस रखता है। कौन रखता है? इंटरव्यूअर रखता है। क्योंकि पब्लिकली यदि वो कोई बात पूछता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर द पर्सनैलिटी। कई बार क्या होता है कि एक जो इंटरव्यूअर है वो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है जो कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं और वो पब्लिक डोमेन में उनको एक तरीके से शो नहीं करना चाहते, एंड दैट इज एन वेरी टिपिकल सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूवी। देन दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड ऑल द थिंग्स अबाउट इंटरव्यू। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है और फर्स्ट पार्ट में कुछ भी नहीं है इसके अलावा कि हम इन 4-5 व्यक्तियों के व्यक्तित्व को, इनके वक्तव्य को याद रखें, इन्होंने क्या कहा वो बातें याद रखें, इंटरव्यू है क्या इसको याद रखें, टर्म इंटरव्यू के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है हम इसको भी याद रखें।
लेट मी टेल यू ए लिटिल रिकैप. इन्वेंट कब हुआ? 130 years एगो. फिर क्या आया? कॉमन प्लेस इन जर्नलिज्म. फिर क्या आया कि सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज इंटरव्यूड सो फार. उसके पश्चात क्या आया कि सम ऑफ द सेलिब्रिटीज कंसिडर इट एज और डिस्पाइज. बहुत से सेलिब्रिटीज को डिस्पाइज करते हैं, ये बात हम सामने आई. फिर बात आई प्रिमिटिव कल्चर की. प्रिमिटिव कल्चर में क्या समझा जाता था? एक फोटोग्राफ लेने वाले को भी ऐसा समझा जाता था कि वो उसका एक तरीके से आत्मा को समाप्त कर रहा है. ओके. इसके बाद हम वीएस नेपोल के बारे में पढ़ा, नेपोम के बारे में, डेविस कैरोल के बारे में, सोल बेलो के बारे में, रुडियार्ड किपलिंग जो कि सबसे ज्यादा कंडेमेंट्री अप्रोच रखता है इंटरव्यू के बारे में, उसके बारे में, और एच.जी. वेल्स के बारे में. ओवरऑल इन कंटेम्पररी एरा if we came to know about a personality, then there is a single best medium in front of all, and that is interview. कंटेम्पररी एज में भी यदि हम किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वो उसका सबसे उपयुक्त माध्यम इंटरव्यू ही होता है, जिसके माध्यम से हम उसके बारे में जान पाते हैं. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर इंटरव्यू. वी हैव टू कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू and have a nice day.